قال اللہ تعالیٰ الحج اشہر معلومات، ذی قعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے جو اشہر حج کہلاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو سال کا 12واں مہینہ اور آخری مہینہ ہوتا ہے اور بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے وہ مہینہ۔ آج 27 تاریخ ہے ذی قعدہ کی، آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ اگر چاند کے اعتبار سے یہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، اتوار کو 29 تاریخ میں چاند نظر آ جاتا ہے تو ہماری بقر عید، عید الاضحیٰ وہ بدھ کے روز ہوگی، 10 تاریخ بدھ کے ہوگی ذی الحجہ کی، اور اگر چاند 30 کا نظر آتا ہے اتوار کو نہیں بلکہ پیر کو نظر آتا ہے تو پھر منگل اور منگل 8، بدھ 9 اور جمعرات 10، جمعرات کی بقر عید ہوگی۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ 2 یا 3 دن کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ 29 میں چاند نظر آئے یا 28 میں چاند نظر آئے، آنے والا مہینہ بہت عبادات کا حامل ہے اور بہت فضیلتوں کا حامل ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ یہی وہ مہینہ 12واں مہینہ ہے ذی الحجہ کا جس میں فریضہ حج، اسلام کا اہم ترین حق ہے، رکن مرکز عالم اسلام پر ادا کیا جاتا ہے، اور تمام دنیا کے کونے کونے سے مسلمان حج کرنے کے لیے مرکز عالم اسلام مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس فریضہ حج میں جان اور مال دونوں صرف کرنا پڑتا ہے، محنت بھی بہت جسمانی کرنی پڑتی ہے اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ فریضہ مرکز عالم اسلام پر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ جتنے عبادات ہیں ان تمام وہ ساری عبادتیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی وہ مقبول ادائیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ چنانچہ حج بھی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے میدان عرفات میں یوم عرفہ میں توبہ قبول ہونے کی یادگار ہے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو جدائی ڈال دی گئی، اور جب اللہ کو تفصیلی واقعات ہیں، اللہ کو جب منظور ہوا کہ ان کی توبہ قبول کر لیں تو دونوں میدان عرفات میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں اس میں اکٹھا ہو گئے، اور اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور انہوں نے گڑ گڑا کے بارگاہ رب العزت میں توبہ کی تو بارگاہ رب العزت میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے دادا اور دادی ہیں، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ بس یہ ایسی توبہ قبول ہوئی ان کے میدان عرفات میں یوم عرفہ میں کہ جو اللہ کو یہ عطا پسند آ گئی، اور ایسی محبوب اور پسند آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہوں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہو اور وہ تندرست ہوں، وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہوں، تو ان کے اوپر اسی تاریخ میں اسی مقام پر جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا جو ہے اسے حج قرار دے دیا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں قبول فرما لی تھی، اسی طرح اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ آپ کی امت کے اسی دن اسی تاریخ میں اور اسی مقام کے اوپر توبہ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور بشارت سنائی کس طرح معاف کرا دے گا اللہ تعالیٰ کہ جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجع کیوم من حج ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد پھر وہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے لوٹ کر حج کر کے اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا جیسے اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے آج بھی جنم لیا ہو۔
یوم عرفہ میں میدان عرفات میں یوم عرفہ میں توبہ کرنے والے کے حق تعالی شانہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رجاء قیوم ولدت امہ، جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی عمل نامہ اعمال میں نہیں ہوتا، نامہ اعمال بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نیکی کوئی عمل ہی نہیں ہوتا، بالکل صاف ہوتا ہے۔ تو فرمایا رجاء قیوم ولدت امہ۔ یہ حج حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ہزاروں سال پہلے اس مقام پر توبہ قبول ہونے کی یادگار ہے، اور اتنی پسندیدہ یہ عبادت ہے اور یہ ادا ہے۔ ہمارے دادا اور دادی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تلک ان کی سزا کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے امت محمدیہ پر حج قرار دے دیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، جان تندرستی ہے، صحت ہے، وہ جا سکتے ہیں، تو وہیں اسی مرکز عالم اسلام پر جا کر اور اسی میدان عرفات میں اسی تاریخ میں پہنچ کر جو توبہ کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں گے، تو حق تعالی شانہ آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی یادگار کو زندہ فرمائے گا، اور ان توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما کر ان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ ہے حج۔ ہمارے دادا اور دادی جن کا لقب ہے ابو البشر آدم و حوا علیہ السلام، تمام دنیا انسانیت کے باپ ہے، ان کی توبہ میدان عرفات میں یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس میدان میں توبہ قبول ہونے کی یادگار ہے حج، جو آج حجاج کرام اسی میدان میں 9 ذی الحجہ کو ادا کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارے ابو البشر دادا اور دادی آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی یادگار کو زندہ کیا جاتا ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ بڑا فضیلت والا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ سب سے افضل الایام یوم عرفہ اذا وافق یوم الجمعہ حج 70 مرۃ مر 70 مرتين۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ ترین دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ میں جمعے کا دن بھی لگ جائے تو اس کی فضیلت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ جمعے کے دن حج کرنے والوں کو 70 حج مقبول کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کتب لہ 70 حج، 70 حجوں کا ثواب دیا جاتا ہے، جسے حج اکبری کہتے ہیں۔ حج ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن پڑا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی حج اکبری تھا۔ جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا تو جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن میدان عرفات میں ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز نہیں ادا کی جاتی، بلکہ میدان عرفات میں ظہر عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد توبہ اور استغفار کی جاتی ہے۔ کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، میدان عرفات میں جا کر کے رو کے تڑپ کے انکساری کے ساتھ میں خوب رو کے تڑپ کے کبھی کھڑے ہو گئے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی دھوپ میں، کبھی سائے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہی جاتے، اسی کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ تو عرفے کے دن جو میدان عرفات میں اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، جیسے آدم و حوا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اسے حج کہتے ہیں۔ وہاں سے لوٹتے ہیں، مینا میں آتے ہیں، قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام باپ بہنوں کی قربانی کے دن کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے نفس جگر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ میدان عرفات میں مذبح میں لے جا کر کے اور انہیں پٹخ دیا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ اللہ کو پسند آ گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی دن میں اللہ کے راہ میں جانور قربان کر کے اس قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیش کی تھی۔ رمیہ جمار کی جاتی ہے، شیطان کے کنکری ماری جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 بار
रोकना चाहा इस कुर्बानी से। तीनों बार आपने कंकड़ियों को मार मार करके शैतान को दबा दिया और अल्लाह का हुक्म आप बजा लाए, मज़बा में ले जाके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए पटक दिया। ये भी उन्हीं की यादगार, आप कुर्बानी करते हैं, ये भी उन्हीं की यादगार है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल के फिदे में जन्नत का एक दुम्बा भेज दिया जिसको ज़िबाह किया गया। अल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबाह किया था वो दुम्बा जन्नत का। तो ये कुर्बानी भी हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। अल्लाह को इतनी महबूब, इतनी पसंद आई कि अपने महबूब खातिमुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर उसी दिन अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करना जो है वो लाजिम करार दे दिया और ऐलान फरमा दिया कि तुम जानवरों की कुर्बानी पेश कर रहे हो और अल्लाह के यहाँ दर हकीकत तुम्हारी जानों की कुर्बानी है, तुम्हारी औलाद की कुर्बानी है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी, आज तुम ये जानवर कुर्बानी पेश कर ऐसा है खुदा की बारगाह में जैसे तुम अपनी औलाद और अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हो। ये कुर्बानी, ये भी यादगार अंबिया अलैहिस्सलाम की यादगार है। बहरहाल वो महीना ज़िलहिज्जा का महीना आने वाला है। ज़िलहिज्जा का वो महीना मुबारक महीना है जिसके बारे में बाद मुफस्सिरीन का कौल ये है कि ये 10 दिन ज़िलहिज्जा के रमज़ान के दिनों से भी ज़्यादा अफज़ल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद हर दिन पहली तारीख से रोज़ा रखना, एक एक रोज़े का सवाब, एक एक रोज़े का सवाब एक एक साल के रोज़े के बराबर है। खुसूसन यौम अरफा कि जब नवी ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने वालों को इतना सवाब दिया जाता है कि अल्लाह ताला उसके एक साल पहले एक साल बाद के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और अल्लाह और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो तो सही कि इन रातों की कसम खाई अल्लाह ने, वल फज्र व लयालिन आश्र, 10 रातों की कसम खाई है। कसम उस चीज़ की खाई जाती है जो बहुत मोहतरम होती है। अल्लाह के नज़दीक ये 10 रातें कितनी मकबूल रातें होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद जो रातें शुरुआत होती है, हर एक रात का दर्जा उसमें इबादत करने का मकाम शब क़द्र की इबादत के बराबर है। अल्लाहु अकबर। 10 रातों में इबादत कर ले तो 10 रातों में 10 शब क़द्र की इबादत करने का सवाब उसको हासिल होगा। वो रातें जिनके कसम अल्लाह ने फरमाई वल फज्र व लयालिन आश्र, तुलूए फज्र की कसम खाने के बाद फरमाया और उन 10 रातों की कसम जो ज़िलहिज्जा की 10 रातें, कितनी मुतबर्रक रातें शुरू होने वाली। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, अगर कोई अमल करे तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा कि चाँद नजर आते ही उस रात में ईशा के बाद 4 रकात नमाज नफल पढ़े। इस तरह के हर रकात में अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 25 बार कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़े तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से उसके पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते। 4 रकात नमाज तो बहरहाल सारी रातों में इबादत करना बहुत अफजल है और 9 रोज़े रखना बहुत अफजल है। 10 दिन के नहीं, 10वें रोज़ तो हमारी ईद होती है जिसमें हम कुर्बानी पेश करते हैं। उस कुर्बानी के दिन में तो कुर्बानी से अफजल कोई अमल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के दिन कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है, कुर्बानी पेश की जाती है। बहरहाल ये ज़िलहिज्जा का महीना हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम की उन पसंदीदा और खुदा की बारगाह में मकबूल होने वाली अदाओं की यादगार है। आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा याद होने की यादगार है। मैदान अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को जमा होना, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना और मीना में के मकाम पर पहुंचकर कुर्बानी करना और शैतान के कंकरियां मारना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की महबूब अदा है। वो महीना शुरू होने वाला है। हर ज़ी इस्तिताअत पर जो साहिब निसाब हो उस साहिब निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब और लाजिम है। 10 ज़िलहिज्जा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बशारत सुनाई है अल्लाह के नज़दीक यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा को खुदा के नाम पर खून बहाना और कुर्बानी करने से महबूब और पसंदीदा कोई अमल नहीं। अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करना और जानवर कुर्बानी करना खुदा के नज़दीक ऐसा है जैसे तुमने अपनी जानें और अपनी औलाद अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख यौमुन नहर कहलाते हैं, कुर्बानी का दिन कहलाते हैं, वो आने वाला। ये 10 दिन आने वाले हैं। 10 दिन के रोजे रखना बहुत सवाब है, 10 रातों की इबादत करना बहुत सवाब है। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होगा 2 या 3 दिन के बाद। 29 का चांद अगर हो गया तो हमारी ईद, जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, ईद उल ज़ुहा नहीं कहते हैं, ये लफ्ज़ गलत कहते हैं लोग। ईद उल ज़ुहा, ज़ुहा तो सुबह के वक्तों को कहते हैं, ईद उल अज़हा कुर्बानी के दिन को कहते हैं। वो कुर्बानी वाली ईद होती है। तो हमारी ईद उल अज़हा, जिसे ईद कुर्बा भी कहते हैं, बकरा ईद भी कहते हैं, वो अगर 29 का चांद होता है तो बुध के रोज़ होगी, और अगर 30 का चांद होता है तो जुमेरात के रोज़ होगी इंशाअल्लाह। हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी करना वाजिब और लाजिम है। कुर्बानी अपनी तरफ से करना वाजिब और लाजिम है। अगर वो साहिब इस्तिताअत है और करना चाहे तो अपनी सारी औलाद की तरफ से कर सकता है, मगर वाजिब नहीं। अपनी तरफ से और अपनी बीवी की तरफ से, बीवी के पास जेवर होता है उस पर भी आमतौर से कुर्बानी वाजिब होती है। लिहाजा अपनी तरफ से और बीवी की तरफ से कुर्बानी करना तो लाजिम है, और अगर वो अपने औलाद की तरफ से भी कुर्बानी करे तो भी जायज़। इसी तरह जिंदों की तरफ से और मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। आप जिंदों की तरफ से भी, अपने माँ बाप जिंदा हैं उनकी तरफ से आप कुर्बानी करना चाहें कर सकते हैं, और अगर वफात पा गए तो वफात पाने वाले अपने मरहूमीन की तरफ से भी कुर्बानी कर सकते हैं। अपने मरहूमीन की रूहों को सवाब पहुँचाने के लिए उनके वास्ते भी कुर्बानी कर सकते हैं। फर्ज वाजिब नहीं है आप पर वाजिब सिर्फ अपने कुर्बानी करना है, और बीवी अगर है साहिब इस्तिताअत है उसकी कुर्बानी करना वाजिब है, और औलाद की तरफ से, औलाद सिगार की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। जिस तरह सदका फित्र वाजिब है ऐसे कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर कोई चाहे तो पैदा होने वाले बच्चे की भी कर सकता है और सारी उम्मत की तरफ से कर सकता है। खुसूसन सरवरे कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना और आपकी रूह मुबारक को सवाब पहुँचाना, ये बहुत आला तरीन दर्जे का सवाब है। इसलिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में कुर्बानी फरमाई। ईद के रोज़ ज़बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्शैन अबलहैन अखरनैन मौजूअैन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे को ज़िबा फरमाया, दोनों सींगों वाले थे और दोनों खस्सी थे और दोनों चितकबरे थे। पूरी कैफियत हदीस पाक में बयान फरमा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को ज़िबा फरमाया, और ज़िबा करने के बाद आपने हाथ उठा के दुआ फरमाई, या अरहमर राहिमीन, इनमें से एक कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल कर ले और एक कुर्बानी मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। वल आखिर मिन उम्मती, और आपने फरमाया दूसरी कुर्बानी मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा ले। गोया आपने अपने से लेके क़यामत तक तमाम उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई है। हम गुलामों पर तो बहुत दारू का है। अल्लामा सरफसी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये हदीस पढ़े तो 10,000 कुर्बानी की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और वे 10,000 कुर्बानी करने के बाद फरमाया कि अगर मेरे पास सारी दुनिया की दौलत होती तो उनके जानवर लेके सारे कुर्बान कर देता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में। बताओ, जब हमारे आका, हमारे रहबर, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतनी शफ़क़त, इतनी मेहरबानी कि आप अपनी पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, तो हम गुलामों पर तो बहुत ज़्यादा लाजिम होती है कि हम आपकी तरफ से कुर्बानी करें और आपकी रूह मुबारक को उसका सवाब पहुँचाएँ, हालांकि आप किसी के सवाब के मोहताज नहीं। आपको अपनी क़ब्र मुबारक में हयात है, जैसे आपको हयात
जिंदगी में थे, आपकी रूह निकालने के बाद आपकी रूह लौटा दी गई, वह वफ़ी क़ब्र ही हई। तमाम दुनिया के आलम इस्लाम के तमाम दुनिया के उलमा का इस पर इत्तेफाक है, आप अपने क़ब्र मुबारक में हयात और जिंदा हैं। और आपका खुद इरशाद है कि मेरी वफात के बाद जो मेरे ऊपर आके सलाम पढ़ेंगे, मैं उन सब के सलाम का जवाब देता हूँ। रोज़े मुबारक पर जाकर वो गुलाम जब कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं वालैका सलाम व अलैका सलाम। और जब आप जवाब में उस पर सलामती भेजते हैं, उस सलाम पढ़ने वाले पर, तो उसके किस्मत के क्या कहने कि खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से उस पर सलामती भेज रहे हैं और सलामती की दुआ फरमा। बहरहाल कुर्बानी नफले कुर्बानी आप सारी उम्मत की तरफ से भी कर सकते हैं। माँ बाप जिंदा हो उनकी तरफ से, मुर्दा हो उनकी तरफ से, मरहूमीन की तरफ से, जिसकी तरफ से चाहे आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी कुर्बानी करने के बाद ये जाहिलाना बात मशहूर है कि अगर कोई शख्स सबसे पहले कुर्बानी करने के काबिल हुआ तो वही कहे कि पहले मैं अपने बाप की तरफ से कुर्बानी करूं, फिर अपनी माँ की तरफ से करूं, तीसरा साल आए तो अपनी तरफ से, तो दोनों सालों में खुद गुनाहगार रहेगा। दोनों सालों में खुद कुर्बानी न करने का गुनाहगार रहेगा। पहले कुर्बानी तो अपनी वाजिब है। अगर आप पर आप साहिब हैसियत हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, तो पहले कुर्बानी आप पर अपनी वाजिब है। ये वाजिब अदा करने के बाद नफल कुर्बानी आप किसी की तरफ से भी करें, कितनी ही करें ना करें, लेकिन अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करना जरूरी है। कुर्बानी का निसाब ज़कात के निसाब से ज़्यादा औसार है। ज़कात का निसाब और है, कुर्बानी का और सदक़ा फित्र का निसाब और है। कुर्बानी के निसाब में असबाबुल ज़कात के निसाब में असबाबुल फ़ैज़ का एतबार नहीं, घरेलू साजो सामान का एतबार नहीं है, कोई एतबार नहीं। अगर आपके पास घरेलू सामान बर्तन कपड़े वगैरह हज़ारों लाख रुपए के हैं तो उसको ज़कात के निसाब में शुमार नहीं किया जाएगा। अलबत्ता कुर्बानी के निसाब में हवाइज असलिया ज़रूरी चीज़ें जो दरकार हैं आपको, उसके अलावा अगर फालतू बर्तन आपके पास है तांबे के और फालतू कपड़े आपके पास हैं तो 6 जोड़ी अपने इस्तेमाल के छोड़ने के बाद अगर आपके पास 20 50 100 जोड़ी कपड़े हैं तो उन सब की कीमत लगाई जाएगी। अगर वो कीमत है मिक़दार निसाब को पहुंच गई, 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच गई, तो कुर्बानी करना वाजिब होगा। यह असबाबुल बैत हवाइज असलिया से जायद जो है, इसका ज़कात में के निसाब में एतबार नहीं है, अलबत्ता कुर्बानी और सदक़े फित्र में इसका। लिहाजा तमाम वो लोग जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है उन पर कुर्बानी वाजिब है, और बहुत वो लोग हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है और कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है, उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। लिहाजा कुर्बानी का फरीज़ा ज़रूर अदा किया जाए, जिस पर वाजिब है ज़रूर अदा किया। बकरे पर करना फर्ज नहीं है। 7वां हिस्सा भैंस में, कटिया में, ऊँट में लेकर एक 7वां हिस्सा भी कुर्बानी से सुबुक हो सकता है। यह मुश्किल बना लिया कि बकरा ही किया जाए, बकरा ही लाजिम नहीं है। अगर आपकी इस्तिताअत बकरे की नहीं है तो आप 7वां हिस्सा कटिए में, भैंस में, ऊँट में लेकर के कुर्बानी से आप सुबुक दोष हो सकते हैं, आप सुबुक दोष हो सकते हैं। हत्ता के फुक़हा ने तो लिखा है कि आप अक़ीक़ा करते हैं, 2 बकरे लड़के के लिए, 1 बकरा लड़की के लिए ज़िबा करते हैं। अगर आप अक़ीक़े की नियत से कुर्बानी के दिनों में भैंस में और कटे में 1 हिस्सा या 2 हिस्से अक़ीक़े के नियत से कर लेंगे तो आपका अक़ीक़ा भी अदा हो जाएगा। इतनी आसान है शरीयत, इतनी आसान है शरीयत जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या अक़ीक़ा भी अदा हो जाएगा आपका। अगर कुर्बानी के जानवर में आपने 2 हिस्से लड़के की तरफ से ले लिया, 1 हिस्सा भी ले लिया, तब भी अक़ीक़ा अदा हो जाए। 2 लड़के के लिए कुर्बान करना बकरे लाजिम जरूर नहीं, मुस्तहब है। तो बहरहाल इतनी आसान है शरीयत कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। याद रखो, कुर्बानी जरूर करना अगर कुर्बानी फर्ज है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पाक इरशाद और ये वईद पेश नज़र है कि आपने इरशाद फरमाया कि
من کان لہ استطاعت ولم یزع فلا یقربن مصلانا، وہ لوگ جو استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی، ولم یزع، اور وہ قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری گاہوں میں نماز پڑھنے دینا۔ اتنی بڑی بیان فرمائی۔ جس پر قربانی واجب ہے اسے چاہیے کہ قربانی کرے، صاف ستھرا جانور خریدے، عیبدار جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی، صاف ستھرا جانور خریدے اور اس میں آپ قربانی ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔